and we'll talk about your resume and we'll talk about the associated stuffs. So as far as your resume is concerned, I'll quickly share my screen also so that we are on the same page. Here, just a second. Yeah, Can you start? Can I start my camera also? yeah. You can turn on your camera. Yeah. All right. So, objective education is fine. Skills, right? Experience you have mentioned. Projects, customer order return prediction. This is the project that you have prepared for specifically for data analytics, right? Not. I mean, yeah, but both the data analytics and the machine learning, because we have used some algorithm in that project. And that is fine, but you will be targeting machine learning, Yeah. data analytics Data. related Yeah. jobs. Yes. All right. So the projects that you have mentioned here, what we can do is um, we can try and segregate this, or I should say, we can try and sequence this in a manner which would be comparatively more appealing to a data analytics recruiter. For example, the first project that you have is based on what? Like, what skills have you used? What tools have you used in this one? Customer order return prediction. This is ML basically. What tools have you used? Not 50% ML. We have used Pandas NumPy for the analytics, data visualization, and for the machine learning, sklearn, the algorithm, machine learning algorithm. Yes, basically this is a machine learning based project, right? So Mm-hmm. this is something that needs to be ordered slightly below, है ना? क्योंकि you need to target a recruiter who is, hiring people having skills like Power BI. They are looking for skills like Tableau, SQL. तो जब भी अपने प्रोजेक्ट्स को ऑर्डर करेंगे तो जो ज्यादा प्रायोरिटी का प्रोजेक्ट होगा वो ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप इन टूल्स का इस्तेमाल किए, है ना? ये प्रोजेक्ट रखिए, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज अ गुड वन, बट इसको थोड़ा नीचे रखेंगे. जैसे बैंक लोन डिफॉल्टर एनालिसिस है ना, दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन. दिस इज यूजिंग टैबल्यू, पावर बीआई, एक्सेल, इन सारी चीजों को लेकर के इसको ऊपर रखेंगे, है ना? Okay. Another thing is the third project which you have added is a real-time project, है ना? The one that you would have done in your company. Yeah, in TCS, right? Correct. Yeah. So whenever you kind of explain this resume to your recruiter, especially when they ask you questions, questions like tell me something that is not given in your resume. These kind of questions they normally ask you, है ना? To build that initial rapport. तो उस टाइम पे आप अपने इस कंपनी के बारे में बता सकते हैं एंड जो रियल टाइम एनालिसिस आप किए हैं वो आप यहाँ पर उन लोगों को बता सकते हैं, ठीक है? दूसरा है बिकॉज यू आर टारगेटिंग डेटा एनालिटिक्स related, profile. What you can do is, यहाँ पर what I find is missing is your GitHub profile. GitHub account यहाँ पे added नहीं है ना? I have GitHub link, but I haven't updated anything. I have not created any repo, so I didn't mention that. That's why. ठीक है, तो वो कर लीजिएगा. लाइक यहाँ पे GitHub का लिंक भी ऐड करना है एंड साथों साथ आपको GitHub पे भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, है ना? एटलीस्ट द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव डन इन द क्लास उसको ऐड कर लीजिए. 4-5 प्रोजेक्ट वहीं से आ जाएगा आपका, है ना? असाइनमेंट 1-2 ऐड कर लीजिए, वो हो जाएगा. बाकी ड्यूरिंग द कोर्स आप जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम किए होंगे या पाइथन के कोड्स पे काम किए होंगे उसको डंप कर दीजिए बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली ओपन सोर्स एंड द रिक्रूटर्स जब आपका वो गिटहब प्रोफाइल देखते हैं तो उनको इस चीज का आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इस इंसान को कितना आता है, कितना हाथ पैर मार के रखा हुआ है वो इंसान. सिंपल ऐसा है ना? तो ओपन सोर्स में जितना एक्टिवली हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन हम लोगों का बनता है इन द आईज ऑफ द रिक्रूटर्स, ठीक है? सो दिस इज वन पार्ट विच इज मिसिंग विच यू शुड ऐड योर गिटहब लिंक. बाकी एज आई मेंशन द प्रोजेक्ट्स दे नीड टू बी ऑर्डर्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. दूसरा है अगर आप यहाँ पर अपने टेक्निकल स्किल्स को देखें, स्पेशली टेक्निकल स्किल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स राइट नाउ. अगेन टेक्निकल स्किल्स आप जिस डोमेन या जिस प्रोफाइल को अप्रोच कर रहे हैं उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा. मतलब आप एनालिटिक्स अप्रोच कर रहे हैं, एनालिटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पावर बीआई है, सबसे इंपॉर्टेंट टैबल्यू है,
तो इसका भी सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। numpy pandas बाद में आएगा, पहले पावर बीआई लिखेंगे, पहले टैबल्यू लिखेंगे, पहले एक्सेल लिखेंगे, पहले एसक्यूएल लिखेंगे, फिर बाकी सारी चीजें आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग करने का जरूरत है। बाकी व्हाट इज द स्कोर दैट यू आर गेटिंग फॉर दिस वन? एटीएस स्कोर कितना है इसका? मतलब मैं नौकरी पे चेक किया था तो मतलब एक्सेलेंट दिखा रहा था, उसमें परसेंटेज नहीं था। और एक वेबसाइट पे तो आई थिंक 90 89 95 मतलब दो तीन वेबसाइट पे वही 85 प्लस दिखा रहा ओके, दैट मीन्स द फॉर्मेट इज अप्रोप्रिएट, है ना? था। द फॉर्मेट विच यू हैव यूज्ड इज अप्रोप्रिएट। ये ओवरलीफ वाला जो हम बताए थे वही वही फॉर्मेट है? हाँ हाँ वही। ओके, ठीक है, तो वो तो खैर अच्छा ही फॉर्मेट था विच आई हैड सजेस्टेड। So हम्म the format is fine. It's just that you need to order few things in here. बाकी इसमें और एक चीज क्या कर सकते हैं, इफ यू गेट सम स्पेस, है ना? जैसे हम्म यहाँ पर अगर हुआ, ये जो 4 पॉइंट ऐड किए हैं, हम्म चैट जीपीटी में इस चारों पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट करके डालेंगे और हम्म बोलेंगे समराइज, हम्म समराइज इन 2 पॉइंट्स, है ना? तो समराइज इन 2 पॉइंट्स वो आपको 2 पॉइंट का समरी दे देगा। हम्म स्पेस आपके पास बन जाए, क्योंकि यू नीड टू हैव जस्ट 1 पेज ऑफ रेज्यूमे, यू हम्म कैन नॉट गो बियॉन्ड 1 पेज। तो जो बाकी का स्पेस बचेगा उसमें हम्म यू कैन ऐड फ्यू मोर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, है ना? हम्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एज एन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका रियल टाइम इन नेचर हो, है ना? हम्म, कोशिश करिएगा मशीन लर्निंग या पावर बीआई से रिलेटेड हो, डोंट गो इनटू डीप लर्निंग राइट नाउ। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जो पावर बीआई एसक्यूएल इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट हो वो आप यहाँ पे ऐड करें। एडिशनल स्किल्स व्हाट यू कैन इनकॉर्पोरेट हियर इज, यू कैन ऐड वेब स्क्रैपिंग, यू कैन लर्न दैट बाय योरसेल्फ। आसान सी चीज है, एक दिन लगेगा आपको वेब स्क्रैपिंग सीखने में। एंड यू कैन स्क्रैप द डेटा आउट फ्रॉम सम लेजिबल वेबसाइट्स। हर जगह से वेब स्क्रैपिंग अलाउड नहीं होता है, तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे। एंड किसी लेजिट वेबसाइट से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं एंड उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। अदरवाइज what you can do is, in my class I had used chat gpt to create data। याद है जो प्रॉम्प्ट हम लिखे थे क्लास में, चैट जीपीटी जब यूज किए थे हम लोग प्रोजेक्ट बनाने में, तो टूरिज्म टूरिज्म उस वाला तरह से, डेटा। करेक्ट करेक्ट, टूरिज्म वाला डेटा। तो उस तरह से भी आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी से थे, चैट जीपीटी के थ्रू, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जब भी वो चीज करें तो हाईलाइट करेंगे कि सर यूजिंग चैट जीपीटी आई हैव डन दिस। सो चैट जीपीटी इज अ वेरी यू नो in demand skill right now. So recruiter will get a taste that yes, this person is somebody who is aware of these in demand skills as well. तो वो आपको एक और एडेड एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, जो मैं डेटा फ्रेम जो डेटा यूज करूंगा उसको चैट जीपीटी से, तो उसको मेंशन करना होगा हाँ वो मतलब मेंशन एग्जाम्पल। कर देंगे, वो मेंशन कर देंगे, तो दैट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज। ठीक है, बाकी एज ऑफ नाउ मेरे को सब सही लग रहा है। कंटेंट एंड कंटेंट जब चाहिए कंटेंट एज एन जो कंटेंट ये वाला चीज जो लिखते हैं उसके अंदर, के अंदर जैसे क्या लिख, टीसी जो प्रोजेक्ट उस पे तो आई थिंक आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक कर रहा है आशुतोष। हेलो हेलो सर। बोलिए बोलिए। हेलो। सर जैसे टीसीएस का जो मेरा प्रोजेक्ट था तो वो मेरा बिल्कुल डिफरेंट डोमेन था। तो आई हम्म थिंक उसमें उसमें तो ज्यादा क्वेश्चन अराइज होगा नहीं इंटरव्यू में। हाँ नहीं, that is fine. You can specify that sir, हम्म I was working in a different domain and now I want to upskill myself. I want हम्म to, you know, get good career opportunity, and that is the reason why I'm learning and I'm exploring data analytics. Career opportunity के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, एक एक प्रोजेक्ट मतलब एक और प्रोजेक्ट ऐड करना चाहिए एक होगा। और ऐड कर देंगे तो that will look better. क्योंकि 2 साल ये हो जाएगा डेटा एनालिस्ट का यहाँ जो मैंने दिखाया Exactly, आपको। exactly. बाकी इन चीजों को ऑर्डर कर लेंगे, the rest everything looks nice. ऑब्जेक्टिव सही है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सही है, I have gone through. ऑब्जेक्टिव सही है, एक गिटहब यहाँ पे ऐड कर लेंगे, that's it. ओके। ठीक है, चलो, that's it. We'll connect later then. Thank you so much. ओके।